Jesus reigns. यीशु मसीह राज करता है। Welcome to all in the sweet and precious name of Jesus Christ. आप सबको यीशु मसीह के नाम से स्वागत है। Once again we are getting this great opportunity to share the word of God. और हमें ये बहुत अच्छा एक अवसर मिल रहा है कि हम परमेश्वर के वचन से बांटें। Bible is the word of God. बाइबल जो परमेश्वर की वचन है। Today we would like to share from the gospel according to John chapter 5. और आज हम यूहन्ना के सुसमाचार उसके 5वां अध्याय से आपसे बांटेंगे। Jesus was in Jerusalem and he came near a pool called Bethsaida. यीशु मसीह जो यरूशलेम में था और वो एक बेथेस्दा नामक एक कुंड के पास आता है। Bethesda is a Hebrew name and the meaning of Bethesda is house of mercy. और बेथेस्दा जो है वो एक हिब्रू नाम है जिसका अर्थ है दया का घर। It is called as house of mercy. So if you come near this house of mercy, Bethesda, you will receive mercy from God. और इस कुंड को बेथेस्दा कर कहते हैं जिसका अर्थ है दया का घर। अगर आप यीशु के पास आते हैं उसी दया को आप प्राप्त कर सकते हैं। Actually speaking, Jesus Christ is the Lord of mercy. और यीशु मसीह ही दया का प्रभु है। He is actually called as the King of mercy. और यीशु मसीह को दया का राजा कर कह सकते हैं। Jesus is a merciful God. यीशु मसीह दया करने वाला एक परमेश्वर है। He is full of mercy and compassion. वो लोगों के प्रति दया से भरा हुआ है। All the suffering people, they can receive mercy and compassion from Jesus. और जितने पीड़ित लोग हैं वो अपने जीवन में यीशु मसीह से दया को प्राप्त कर सकते हैं। Whenever we go through some painful experiences, we expect mercy from someone. और जब भी हम किसी ऐसे कठिन समस्याओं से होकर जाते हैं हम चाहते हैं कि कोई हमारे ऊपर दया करे। Usually we couldn't find mercy from people. और हमें कभी भी लोगों से दया नहीं मिलती। Come near Jesus. लेकिन यीशु के पास आइए। Jesus is full of mercy and he can bless you and he can change your situations and he can bring forth mercy in your life. यीशु मसीह दया से भरा है। अगर आप यीशु के पास आते हैं उसकी दया से वो आपको भर देगा। Jesus came near this pool called Bethesda and he healed a lame man in this place. यीशु मसीह इस बेथेस्दा नामक कुंड पर आकर एक लंगड़े व्यक्ति को चंगा करता है। And there were so many sick people around near this pool. और उस कुंड के चारों ओर बहुत बीमार लोग पड़े हुए थे। Like lame, blind, paralyzed, and they were all waiting for the moving of the water. और बहुत ऐसे बीमार लोग पड़े थे, अंधे लोग, लंगड़े और शरीर के अंग सूखे हुए लोग। When an angel went down into this pool during a certain time and stirred the water, that is a time for the healing of the people. और ऐसा होता था कि परमेश्वर की एक स्वर्गदूत वो कुंड में आकर वो जल को हिलाने के टाइम जो लोग भी उस पे उतरते थे वो चंगा हो जाते थे। Then whoever stepped in first and that person was healed. और जो कोई बीमारी उस जल के हिलाने के टाइम वो कुंड पे उतरते थे वो जो प्रथम उतरने वाले व्यक्ति चंगा हो जाते थे। And there was a man sick for 38 years lying on a bed. और वहां पे एक मनुष्य पड़ा था जो 38 सालों से अपने बिस्तरे पर पड़ा हुआ था। He was a lame man and nobody was there to help him. और वहां पे कोई नहीं था कि वो आदमी की मदद करे। He was lying on the bed and he was totally helpless. No one was there to help him. और बहुत सालों से वो अपने बिछोना में पड़ा हुआ था और उसके पास कोई नहीं था कि उसकी मदद करे। Are you going through some helpless situations in your life? क्या आप ऐसी अवस्था से होकर जा रहे हैं जहां पे आपकी मदद करने के लिए कोई नहीं है? No hope for your future and nobody is there to help you? आपके भविष्य के लिए आपको कोई आशा नहीं, आपके पास कोई नहीं जो आपको मदद कर सके। Rejected and denied by people and you are surrounded by so many problems.
और आप तिरस्कृत है लोगों से और आपके जीवन में आप बहुत समस्याओं के सामना को कर रहे हैं and you are unable to solve your problems and you are weeping and crying, no word of comfort you are receiving in your life. और आप अपने परेशानी में रात दिन रोते हो लेकिन आपके पास कोई नहीं आता कि आपके ऊपर दया दिखाए, Then Jesus is coming near you. तब आप ये सोच लीजिए कि यीशु आपके पास आ रहा है। Even if you are ignorant about Jesus Christ, शायद आप यीशु को नहीं जानते, even if you don't know who is Jesus, आपको ये नहीं जानते कि यीशु कौन है, but Jesus knows you very well. लेकिन यीशु आपको बहुत अच्छी तरीके से जानता He है। comes near you. वो आपके पास आता है, He is full of mercy. वो दया से भरा हुआ He है, is full of healing. उसके पास पूरी चंगाई से वो भरा हुआ He is है। a powerful God. वो एक शक्तिशाली परमेश्वर है, He is Almighty God. वो एक शक्तिशाली परमेश्वर है। For him all things are possible. उसके लिए सब कुछ संभव है। He can perform a miracle in your life. वो आपके जीवन में एक चमत्कार को कर सकता है। Look at this story and we see that man was lying down there for 38 years on that bed. और आप इस कहानी को देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं कि 38 साल से ये व्यक्ति बीमार पड़ा था। Jesus came near him. यीशु मसीह उसके पास आया। You know, Jesus is the master of time. आपको मालूम है यीशु मसीह समय का प्रभु है। Even if he was sick for 38 years, हो सकता है वो 38 सालों से वो बीमार था, that's not a problem for Jesus. लेकिन वो यीशु मसीह के लिए कोई समस्या नहीं है, Because he is the master of time. क्योंकि वो समय का प्रभु है। We see 7 miracles in the gospel according to John. हम यूहन्ना के सुसमाचार में 7 ऐसे चमत्कार को देख सकते हैं, And every miracle gives us a message about Jesus Christ. और हर एक चमत्कार यीशु मसीह के बारे में एक संदेश हमें देता है। In John chapter 2, we see a miracle performed by Jesus turning water to wine. और हम उसके यूहन्ना के दूसरे अध्याय में देख सकते हैं कि यीशु मसीह पानी को दाखरस में बदल दिया। And that gives us a message that Jesus is the master of quality. और ये हमें संदेश देता है कि यीशु मसीह खूबियत का परमेश्वर है। And in this chapter, Jesus was healing this man who was sick for 38 years and proving that he is the master of time. और ये अध्याय में हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह 38 साल से बीमार हुआ व्यक्ति को चंगा कर रहा है, जो ये स्थापित करता है कि यीशु मसीह समय का ऊपर प्रभुता करता है। Maybe you are going through a problem for the last 5 years. हो सकता है आप पिछले 5 साल से कुछ ऐसी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, Unresolved problem and you don't know who is going to solve that problem. ऐसी समस्या जो कोई भी आपको सहायता नहीं कर सकता, उसका उत्तर कोई भी आपको नहीं दे सकता। I tell you, your solution is already born 2000 years ago. लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपकी जो समस्या का जो उत्तर है वो 2000 साल पहले वो जन्म ले चुका है। Your problem was born maybe 10 years ago, maybe 5 years ago. शायद हो सकता है कि आपका जो परेशानी है वो कुछ 5 साल या 10 साल पहले शुरू हुआ हो, But your solution was born 2000 years ago. लेकिन उसका जो उत्तर है वो 2000 साल से पहले जन्म ले चुका है। And who is your solution? आपका वो उत्तर कौन है? Your solution is a person. आपका जो उत्तर वो एक व्यक्ति है, And his name is Jesus. और उसका नाम है यीशु मसीह। Your solution was born 2000 years ago. और 2000 साल पहले आपका जो उत्तर है वो पैदा हुआ। If you invite Jesus to your life, अगर आप यीशु को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं, he is able to solve your problems. वो आपके परेशानियों को दूर करेगा। He came near this man who was lying on the bed for 38 years. और यीशु मसीह वो व्यक्ति के पास आता है जो 38 साल से बीमार था। And he said to him, Do you want to be made well? उसके पास आकर यीशु मसीह कहता है कि क्या तुम चंगा होना चाहते हो? You know what was his response? उसका उत्तर क्या था? You know, he don't know who was standing near him. उसको नहीं मालूम कि उसके पास कौन खड़ा है। He don't know who is Jesus Christ. उसको नहीं मालूम कि यीशु मसीह कौन है। So he was just sharing his problems to Jesus. तो वो अपने समस्याओं को यीशु मसीह के साथ बांटता है। Last 38 years I am lying down here. Nobody is there to help me.
पिछले 38 सालों से मैं यहाँ पड़ा हूँ और मुझे मदद करने के लिए कोई नहीं है। 38 years I saw the moving of the water. Before I came near the pool, someone else jumped into the pool and received his healing. मैं पिछले 38 साल से ये देख रहा हूँ कि जब भी स्वर्गदूत आकर एक कुंड पे उतरता और ये जल को हिलाता, मुझसे पहले कोई आकर चंगा पा लेता है। Nobody is there to help me. मेरे पास कोई नहीं कि मेरी मदद करे। He was preaching about trusting in man. और वो यीशु से प्रचार करता है कि मनुष्य के ऊपर भरोसा करने। I have no man to trust on. मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है जिस पे मैं भरोसा कर सकता हूँ। But as we know that even if we trust on man, we will fail. लेकिन हमको ये मालूम है कि अगर हम मनुष्य के ऊपर भरोसा करते हैं तो हम पराजित होंगे। Man will fail in his promises and he is unable to keep his promises. क्योंकि मनुष्य अपने जो वायदाएं हैं उसको पूरा नहीं कर सकते, वो अपने वायदाओं पर हार सकता है। This man was talking about trusting in man. और ये व्यक्ति मनुष्य के ऊपर भरोसा करने के बारे में कह रहा है। Jesus was talking about healing. लेकिन यीशु मसीह उससे चंगाई के बारे में कह रहा You है। don't need to trust in man. तुम्हें मनुष्य के ऊपर भरोसा करने की जरूरत नहीं You है, have to trust in God. तुम्हें परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना है। Turn your attention from man to Jesus. तुम्हारी जो ध्यान है वो मनुष्य के ऊपर से छोड़कर परमेश्वर की ओर लगाए। You have to refocus your attention to Jesus. तुम्हें अपना ध्यान पूरी तौर से यीशु के ऊपर देना है। Usually we want to solve our problems through trusting in man, through trusting in money, or through trusting in some human formulas. और हम साधारण रूप से मनुष्य पर भरोसा करना चाहते हैं, हम अपने धन दौलत पर भरोसा करना चाहते हैं। And I tell you that will not work in your life. लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये आपके जीवन में काम नहीं करेगा। But if you trust in Jesus Christ, लेकिन आप अगर यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं, if you turn your attention to Jesus Christ, अगर आप अपने ध्यान को यीशु के ऊपर लगाते हैं, with one word he can solve your struggles. उसका एक शब्द से आपका जो परेशानी है उसको दूर कर सकता With है। one word he can heal your body. एक शब्द से वो आपकी शरीर को चंगाई कर सकता है। When this man was talking and preaching about trusting in man, और जब ये व्यक्ति यीशु मसीह से प्रचार करता है मनुष्य के ऊपर भरोसा करने के बारे में, suddenly Jesus said, "Rise, take up your bed and walk." तब तुरंत ही यीशु ने कहा कि उठ, अपने बिछोना ले ले और चल। 38 years lame. 38 साल से वो लंगड़ा है, Never walked during the past 38 years. और पिछले 38 साल से वो कभी नहीं चला। When Jesus said, "Rise," लेकिन यीशु मसीह ने जब उससे कहा उठ, all on a sudden he rose from his bed and started taking his bed and started walking. और उसी समय उठ खड़ा हुआ अपने बिछोना को लेकर और वो चलने लगा। Can you believe that? क्या आप वो विश्वास कर The सकते same हैं? thing will happen in your life. यही संभव आपके जीवन में हो सकता है। If you are bedridden and unable to walk properly, आप अपने बिस्तरे पर पड़े हैं, आप अच्छी तरीके से चल नहीं सकते अभी, rise right now in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से उठो। Walk right now in the name of Jesus. उठकर यीशु मसीह के नाम से तुम चलो। He wants to perform a miracle on your body. यीशु मसीह आपके शरीर में एक चंगाई को करना चाहता है। He wants to heal your body. यीशु मसीह आपके शरीर को चंगा करना चाहता है। This is your miracle moment. ये आपका चमत्कार का समय है। You can receive that miracle in the name of Jesus. आप यीशु मसीह के नाम से उस चमत्कार को प्राप्त कर सकते When हैं। Jesus healed this man, जब यीशु मसीह ये व्यक्ति को चंगा करता है he took his bed and started walking. और वो अपना बिछोना को लेकर वो चलने लगता है। And the religious leaders saw him walking, taking this bed. और जब वहां के न्याय शास्त्री ने देखा कि ये व्यक्ति अपना बिस्तर लेकर चलता है, And that was a Sabbath day. वो दिन शबत का दिन था। Sabbath means during Sabbath days, the Jewish people will not work. क्योंकि शबत के दिन यहूदी लोग कोई भी काम नहीं करते। That was a religious rest day for Jewish people. वो एक धार्मिक दिन था जिस दिन यहूदी लोग कुछ भी काम नहीं करते। On that day, Jesus healed this man.
लेकिन उस दिन यीशु मसीह ने ये व्यक्ति को चंगा किया। And what was the result? और उसका नतीजा क्या था? These religious Jewish people started persecuting Jesus for this particular healing. यीशु मसीह को ये चमत्कार करने के कारण ही ये यहूदी लोग सताने लगे। Even they sought to kill Jesus. और उन्होंने ऐसा भी सोचा कि यीशु मसीह को मार डालें। Why? क्यों? Because he did a good work on the Shabbat day. क्योंकि उन्होंने एक काम किया शबत के दिन। He is the God Almighty who has the authority to work any day. वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो किसी भी दिन अच्छा काम को कर सकता है। And he said, my father has been working until now and I have been working. उसने उत्तर दिया कि मेरा पिता तो कर्म को कर रहा है और मैं भी करता हूँ। If he decides to work in your life, अगर यीशु मसीह चाहता है कि वो आपके जीवन में काम करे, no religious law is going to stop him. उसको कोई धार्मिक नियम उसको रुका नहीं सकता। No evil powers are going to stop him. उसको कोई भी अंधकार की शक्ति उसको रुका नहीं सकता। He is going to work in your life. वो आपके जीवन में काम करेगा। If he decides to bless your life, अगर वो निर्णय लेता है कि वो आपके जीवन को आशीष दे, no generational curses are going to stop that. जो पीढ़ी से जो शाप है उसको नहीं रोकेगा आपको आशीष करने से। He will break every generational curses from your life and he will bless your life. वो हर एक शाप को तोड़कर वो आपके जीवन को आशीष करेगा। He wants to work in your life right now. वो आज ही अभी आपके जीवन में काम करना चाहता है। Because of this miracle, these religious leaders started asking one another, who is he? और ये चमत्कार करने के कारण ये जो धार्मिक नेता लोग पूछने लगे कि ये कौन है? Because he is disobeying our religious law. क्योंकि वो हमारे शब्द के नियम को तोड़ता है। So he is not truly coming from God. इसलिए ये परमेश्वर से ही सही रूप में नहीं आता। So they started questioning Jesus. तो उन्होंने यीशु मसीह से प्रश्न पूछने लगा। Actually, what happened here? A good work. Jesus did a good work in the life of a paralyzed man. लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? यीशु मसीह ने तो एक अच्छा काम किया एक लंगड़े व्यक्ति के जीवन में। But because of that good work, these religious leaders started persecuting Jesus. लेकिन ये अच्छा काम करने के बावजूद भी ये जो धार्मिक नेता थे यीशु मसीह को सताने लगे। It's a strange thing when Jesus is performing a miracle in the life of a person. Who wants to stand against that miracle? यीशु मसीह जब कुछ अच्छा काम करता है तो उसके विरोध में कौन खड़ा हो सकता है? No one can stand against Jesus Christ. यीशु मसीह के सामना कोई भी नहीं कर सकता। He doesn't need anyone's approval to perform a miracle in your life. यीशु मसीह को किसी से पूछना नहीं कि आपके जीवन में अच्छाई को करे या नहीं। When there took place a conversation between Jesus and these religious leaders, और जब यीशु मसीह और ये जो धार्मिक नेताओं के बीच में जब बातचीत हुआ, he is speaking about fourfold witness. तब यीशु मसीह वहां पे 4 साक्षियों के बारे में कहता है। Even after you saw this miracle, if you are not believing in me, तो यीशु मसीह कहता है कि तुम इतने चमत्कारों को देखकर भी तुम मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते, then would you believe in Moses? तो क्या तुम मूसा के ऊपर विश्वास करोगे? If you would believe in Moses, अगर तुम मूसा के ऊपर विश्वास करते, then definitely you will believe in me. तब तो जरूरी तुम मेरे ऊपर भी विश्वास करते। Because Moses spoke about me. क्योंकि मूसा ने मेरे बारे में ही कहा है। Moses spoke about a mediator who will stand in between God and man. क्योंकि मूसा ने ऐसे एक व्यक्ति के बारे में कहा जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में मध्यस्थ करेगा। Moses spoke about me. मूसा ने तो मेरे बारे में ही कहा है। John the Baptist spoke about me. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वो मेरे बारे में ही कहा है। He proclaimed once Jesus, the Lamb of God, who takes away the sin of the world. और यूहन्ना ने इस प्रकार से कहा कि यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना जो इस संसार का पाप को उठा लेता है। And you know the scriptures, and the scriptures speaks about me. और तुम्हें तो ये वचन का ज्ञान है और ये सब वचने मेरे बारे में ही कहता है। The scriptures witness about me. ये जो वचन है वो मेरे बारे में साक्षी देता है। And also my works.
I am performing all these works before your eyes. और ये मेरे कार्य, ये सब चमत्कार मैं तुम्हारे आंखों के सामने ही करता हूँ। Lame is walking, और जो लंगड़े हैं वो चलते हैं, blind is seeing, जो अंधे देखते हैं, deaf is hearing. और जो बहरे हैं वो सुनते हैं। The very works that I do bear witness of me. और मेरे जो काम मैं करता हूँ वही मेरा साक्षी देता है। Even after they saw all these miracles, all the works of Jesus Christ, they are unable to believe in Jesus. यीशु मसीह के इतने कार्य, इतने चमत्कार देखने के बाद भी वो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर सकते। Jesus is doing a miracle in your life. यीशु मसीह आपके जीवन में एक चमत्कार को करता है। What is the end purpose of that miracle? वो चमत्कार का अंतिम उद्देश्य क्या है? To turn your attention from the worldly things to Jesus Christ. ताकि आपका जो ध्यान इस संसार के वस्तुओं पर है उससे हटाकर आप यीशु की ओर ध्यान दें। To turn your attention from temporary world to eternal life. आप ये गुजर जाने वाले ये संसार से अपना ध्यान छोड़कर अनंता के संसार की ओर ध्यान लगाए। And finally Jesus said, my Father himself who sent me has testified of me. और अंतिम में यीशु इस प्रकार से कहता है कि मेरे जो स्वर्गीय पिता जिसने मुझे भेजा है वही मेरा साक्षी खड़ा है। And what was the testimony of his father? और उसके पिता का साक्षी क्या था? This is my beloved son in whom I am well pleased. और ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। Jesus Christ is the Son of God. यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। Second person in Godhead. दूसरा व्यक्तित्व परमेश्वर के उस द्वैता में। He is the Almighty God. वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। He is the creator of the whole universe. वो पूरे संसार को रचने वाला है। And Father is well pleased in him. और स्वर्गीय पिता उसमें बहुत ही प्रसन्न है। Those people who accused him, who persecuted him, even though they saw all these miracles and they have all these witness, they were not able to believe in Jesus Christ. ये लोग जो यीशु ने जो अच्छे काम किए, जो चमत्कार किए, ये सब देखने के बावजूद भी वो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर सकते। That shouldn't happen in our life. वो हमारे जीवन में नहीं होना है। You are hearing the word of God. वो आप अभी परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। Jesus is performing many miracles in your life. यीशु मसीह आपके जीवन में बहुत चमत्कारों को करते हैं। You shouldn't doubt in Jesus. आप कभी यीशु मसीह के ऊपर शक ना कीजिए। But you have to commit your life for Jesus Christ. आप अपने जीवन को यीशु मसीह के लिए समर्पित कीजिए। You have to declare, Jesus, I am trusting in you. आपको इस प्रकार से घोषणा करना है कि यीशु मसीह मैं आपके ऊपर भरोसा करता हूँ। I commit my life for you. यीशु मसीह मैं अपने जीवन को आपके लिए समर्पित करता हूँ। Work in my life. मेरे जीवन में कार्य कीजिए। You are a working God. प्रभु आप कार्य करने वाला परमेश्वर है। Change my life. मेरे जीवन को बदल दीजिए। Perform a miracle in my मेरे life. जीवन में एक चमत्कार को कीजिए। I trust in you. मैं आपके ऊपर भरोसा करता हूँ। Declare it ऐसे आप प्रस्ताव बना कीजिए। and commit your life for Jesus Christ. आप अपने जीवन को यीशु मसीह में समर्पित कीजिए। Invite Jesus to your life. यीशु मसीह को अपने जीवन में निमंत्रित कीजिए। Are you going through some serious struggles in your life? क्या आप अपने जीवन में ऐसे कठिन परिस्थितियों से जा रहे हैं? Are you sick on your body? क्या आप अपने शरीर में बीमार हैं? Then we want to pray for you. तब तो हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। Jesus is here right now. यीशु मसीह यहाँ पे है। He wants to heal your body. यीशु मसीह आपके शरीर को चंगाई देना चाहता He है। wants to save you from all those sufferings and struggles. यीशु मसीह चाहता है कि आपको अपनी परेशानियों से बाहर निकाले। Let us pray together. आइए हम प्रार्थना करें। Father, in the name of Jesus Christ of Nazareth, we pray for these dear people. स्वर्गीय पिता हम यीशु मसीह नसरी के नाम में इन लोगों के लिए प्रार्थना करते They हैं। are so precious for you, Lord. प्रभु वो आपके लिए बहुत ही बहुमूल्य है। Right now, stretch out your merciful hands on them, Master. प्रभु आपका दया से भरा हुआ अपने हाथों को इनके ऊपर भेजिए। Take them out of those problems and struggles. प्रभु उनको अपनी परेशानियों से, अपनी समस्याओं से उनको बाहर निकालिए। Some of them are helpless in their life. प्रभु बहुत
बहुत लोग अपने जीवन में अपने आप को मदद नहीं कर सकते। And Lord, you are ready to help them, and right now help them, Lord. प्रभु आप तैयार हैं कि आप उनकी सहायता करें। प्रभु आप आकर उनकी सहायता की। Save them, Lord. प्रभु आप उनको बचाइए। And all those dear people who are going through physical sicknesses, heal them, Lord. प्रभु जितने लोग अपने शरीर में बीमार हैं, आप उनको छूकर चंगाई दीजिए। In the name of Jesus Christ of Nazareth, I command every sicknesses to come out of those bodies. और मैं यीशु मसीह के नाम से हर एक बीमारी की आत्मा ये शरीर में है, उसको आज्ञा देता हूँ कि यीशु मसीह के नाम से तुम बाहर निकलो। Every paralytic people rise and walk in the name of Jesus. और जितने लोग उठकर खड़े नहीं हो सकते, जो बिस्तरे में पड़े हैं, यीशु मसीह के नाम से उठो और चलो। Every spirit of cancer come out of their bodies and go under the feet of Jesus. हर एक कैंसर की आत्मा ओ यीशु के नाम पर निकलो, यीशु के चरणों में चले जाओ। Receive your healing. इसी समय यीशु के चंगाई को प्राप्त करो। In Jesus' name, receive your healing. यीशु के नाम में आपकी चंगाई को प्राप्त करो। A great light is coming in your life. बहुत बड़ी एक रोशनी आपके जीवन में आ रही है। In Jesus' mighty name. यीशु मसीह के नाम से Amen. आमीन। God has did a great thing in your life. प्रभु ने आपके जीवन में बहुत बड़ा काम को किया है। Days of miracles are ahead of you. आपके सामने चमत्कारों का दिन आगे है। Go ahead trusting in Jesus. आप आगे बढ़िए यीशु पर भरोसा करते हुए। God bless you. यीशु मसीह आपको आशीष दे। Amen.